ہمارا اور آپ کا ایک ہاتھ کٹ جائے افسوس ہوگا؟ ارے سب بولو، افسوس ہوگا۔ سر کٹ جائے افسوس ہوگا۔ ہم میں کتنا بھی بڑا متقی ہو اور کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو، چاہے دین کی خاطر ہی صحیح، اگر سر کٹ جائے تو افسوس تو ہوگا ہی، افسوس ہوگا نا۔ جان چلی گئی، افسوس تو ہونا ہی ہے۔ لیکن کربلا میں امام حسین نے جو سر کٹایا، ان کا جو گردن کٹا، انہیں افسوس نہیں ہوا؟ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں افسوس نہیں ہوا؟ آپ شعر میں سنو گے۔ اور کربلا والے نے کربلا میں اپنا گھر پر لٹا کے کیا بچایا، اس شعر میں سنو۔ مگر شعر میں اس طرح نہیں سناؤں گا سستے میں، بہت مہنگا شعر ہے۔ پورا مجمع جب تک پوری طاقت کے ساتھ مجھے سبحان اللہ کا سپورٹ نہیں دے گا، میں نہیں بولوں گا۔ میں مصرع پیش کروں، سماعت فرمائے کہ دیا تھا ہم کو جو آقا نے وہ انعام بچ گیا۔ دیا تھا ہم کو آقا نے، دیا تھا جو ہمیں آقا نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں ہوا، پورا مجمع اب تک بیدار نہیں ہوا ہے، شاید آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ غور کیجئے، دھیان دیجئے کہ دیا تھا جو ہمیں آقا نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ ابھی بھی تیسرا اور چوتھا مصرع باقی ہے، ابھی میں نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ آپ اب تک سست پڑے ہیں۔ کھانا نہیں کھائے کیا؟ آجو باجو دیکھیے کون نہیں بولتا ہے؟ مجمع میں دو ہی لوگ نہیں بولتے ہیں، ایک یا تو وہ جس کے منہ میں گٹکا ہے، دوسرا وہ جس کے دل میں کھٹکا۔ یہ دو ہی لوگ نہیں بولتا، یا پھر اور دو لوگ نہیں بولتے، جس کا گھر میں کوئی ٹینشن چل رہا ہے وہ مجمع میں آ کے نہیں بولتا، یا پھر جس کے سامنے کا دانت ٹوٹا ہے وہ بھی نہیں بولتا۔ اب آجو باجو دیکھ لینا کہ کون نہیں بولتا ہے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ دیا تھا جو ہمیں آقا نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ دیا تھا جو ہمیں آقا نے وہ انعام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ نیزے پہ کہہ رہا تھا یہ سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ سر کٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ حضرات، اب میں آپ کو ایک پیغام دے دوں۔ ہمارے اسٹیج کا، ہمارے جلسوں کا مزاج یہ ہے، ہمارے اسٹیج میں جو بھی مائک پہ آتا ہے، ایک بعد دیگر آتا ہے، آپ سے کہتا ہے بولو۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا بولیے؟ کیا بولنے کے لیے بولتا ہے؟ کیا بولنے کے لیے بولتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار بلواتے ہیں، بار بار بلواتے ہیں، تھکا دیتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ لیکن حضرات، یہ سبحان اللہ یہ ہمارے رسول کی بولی ہے، کر دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسٹیج کا مزاج ہے، شاعر آیا آپ کو بولا بولو، مقرر آتا ہے آپ کو بولتا ہے بولو، نقیب آتا ہے تو آپ کو بولتا ہے بولو۔ حضرات، آج پوری دنیا بول رہی ہے، دنیا کا ہر شخص بول رہا ہے، دنیا کا ہر فرد بول رہا ہے، ہر پارٹی بول رہی ہے، ہر جماعت والے بول رہے ہیں، ہر فرقہ والے بول رہے ہیں، ہر طبقہ والے بول رہے ہیں، لیکن دنیا کے بولنے کا مزاج الگ ہے، دنیا کی بولی کا تیور الگ ہے، دنیا کے بولنے کا انداز الگ ہے۔ دنیا جب بھی بولتی ہے تو پارٹی کی بولی بولتی ہے، دنیا جب بھی بولتی ہے تو حمایت کی بولی بولتی ہے، دنیا بولتی ہے تو سیاست کی بولی بولتی ہے، دنیا بولتی ہے تو صدارت کی بولی بولتی ہے، دنیا بولتی ہے تو تجارت کی بولی بولتی ہے، دنیا بولتی ہے تو گھر بار کی بولی بولتی ہے، دنیا بولتی ہے تو اپنے باپ کی بولی بولتی ہے۔ مگر جب نبی کا دیوانہ بولتا ہے، مجمع میں بیٹھ کر مرد مومن بولتا ہے، تو کسی پارٹی کی بولی نہیں بولتا، کسی کی حمایت کی بات نہیں کرتا، کسی کی سیاست کی بولی نہیں بولتا، کوئی تجارت کی بولی نہیں بولتا، بلکہ مرد مومن جب بھی بولتا ہے تو اپنے باپ کی بولی نہیں بولتا، رسول پاک کی بولی بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس لیے ہمیں اور آپ کو سبحان اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک لالچ آپ کو دے دوں، لالچ۔ اگر مجمع میں کسی کو نیکی کی لالچ ہے، کسی کو نیکی کی تو نہیں ہے، نیکی کی لالچ سب کو ہونی چاہیے۔ اگر نیکی کی لالچ ہے تو یہ حدیث سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ
जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला अर्श पे फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्ते अमानत में उस मोहल्ले में जलसे में बैठकर मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह सब जानता है, अल्लाह के इल्म से कोई चीज पोशीदा नहीं है, अल्लाह सब जानता है, लेकिन फिर भी अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्ते ये मेरे बंदे क्या कह रहे हैं। तो फरिश्ते बोलेंगे मौला ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक बार और बोलिए। सुभान अल्लाह। क्या फरिश्ते क्या बोले, मौला सुभान अल्लाह कह रहे हैं। सुभान अल्लाह का माना अल्लाह पाक है। फरिश्ते बोलेंगे मौला तेरे बंदे तेरी पाकी बयान कर रहे, तुझे पाक कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों गवाह रहना मैं तो पाक हूँ ही, लेकिन इन्होंने जो मुझे पाक कहा इसके बदले मैंने उनको उनके गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब इस मजमे में बैठा हुआ हर फर्द अगर सच्चे दिल से खुदा की पाकी बयान करे तो मेरा दावा है कि गुनाहों से पाक होकर यहाँ से उठेगा। सुभान अल्लाह बोलने में तजवीज़ ना करें। एक पैगाम और देना है, लेकिन उससे पहले जरा अपने बाप माँ के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा अपने सास ससुर के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा इसमें आवाज़ कम आई, इसमें आवाज़ कम आई। आज का नौजवान दहेज तो लेता है, मोटरसाइकिल ले लेता है ससुर से, लेकिन सुभान अल्लाह कहकर ससुर को सवाब नहीं पहुंचाता। ससुर के नाम पर, अरे ससुर और दामाद का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। ससुर और दामाद का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये और बात है कि आज के दौर में हम इस रिश्ते की कदर नहीं करते, लेकिन ससुर दामाद को इस नजरिए से देखो कि पूरी कायनात में मेरे नबी से बेहतर कोई ससुर नहीं और पूरी कायनात में हजरत अली से बेहतर कोई दामाद नहीं। ये रिश्ता है, हमें और आपको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। एक पैगाम और देना है हजरात, आज हमारे मुआशरे में शराब की लोगों को आदत हो गई, लोग शराब पीते हैं, शराब आम होता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी को परेशानी हो तकलीफ हो उठ के जाना चाहे तो चुपके से जाइएगा और आधा घंटे के लिए आप मजमे को खराब ना कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, आधा घंटे के लिए मजमे को खराब, अभी जो मजमा बना है अल्लाह अकबर बहुत अच्छा मजमा है। ये पैगाम ले लीजिए कि शराब आम हो गया, बेटा बाप के सामने शराब पी रहा है, भाई बड़े भाई के सामने शराब पी रहा है। हम मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल का कंपनी कानून लगा दिया मोटरसाइकिल में सिर्फ पेट्रोल डालना, डीजल ना डालना, केरोसिन ना डालना। अगर हम गाड़ी खरीद के घर लाए और हम सोचे पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है, मैंने पैसा देके गाड़ी खरीदा है, कंपनी कौन होता है हुक्म लगाने वाला, कंपनी कौन होता है कानून लगाने वाला, पाबंदी लगाने वाला, मैं इसमें केरोसिन डालूंगा तो गाड़ी चलेगी? अरे बोलो, गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक इसी तरह अल्लाह ने जो आपको यह खूबसूरत जिस्म दिया है, खूबसूरत बॉडी दी है, इसके साथ अल्लाह ने एक कानून बना दिया है, पाबंदी लगा दी है। मेरे बंदे मैंने तुझे अनमोल बदन दे दिया, मैंने तुझे खूबसूरत जिस्म दे दिया, मैंने तुझे खूबसूरत बदन दे दिया, इस बदन में खबरदार कभी हराम ग़िज़ा ना डालना, इसमें हलाल ग़िज़ा डालना। अब अगर हम इस दुनिया में आने के बाद कहें पैर मेरा, हाथ मेरा, जिस्म मेरा, लीवर मेरा, गुर्दा मेरा, कलेजा मेरा, मैं इसमें हराम डालूं चाहे हलाल डालूं, अल्लाह कौन होता है पाबंदी लगाने वाला? तो हजरात यकीन मानो, आज इस मजमे से ये पैगाम लेकर जाओ, शराब पीने वाला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, उसके आज़ाद सब धीरे धीरे सब के सब कमजोर होते जाएंगे। हजरात हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं, दुनिया वाले भी पीते हैं, लेकिन हमारा आलम यह है तैयबा से मंगाई जाती है, सीने से छुपाई जाती है। और जोर से, तैयबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद का मैं प्याले से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। दुनिया वाला पिलाता है तो दीवाना बना देता है, दुनिया वाला पिलाता है तो मजनू बना देता है, दुनिया वाला पिलाता है तो नाले में लेटा देता है, दुनिया वाला पिलाता है तो सड़कों पे सुला देता है, दुनिया वाला पिलाता है तो अक्ल शोर को गायब कर देता है। लेकिन जब मुस्तफा पिलाते हैं तो अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना देता है, उमर को फारूक आजम बना देता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना देता है, अली को शेर खुदा बना देता है, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है, मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। और जब मुस्तफा पिलाने पे आते हैं तो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत बना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी तकरीर हुई, मजमे में किसी को समझ में नहीं आया?
हो कि नारा क्यों नहीं लगा? क्या हमारे 200 जज्बे खत्म हो गए? हजरात मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हदीस सुनाना है और आपसे कुछ लेना भी है। मेरा 2 काम है, डबल ड्यूटी है। मैं इख्तियार मुस्तफ़ा पर, पावर मुस्तफ़ा पर हदीस भी सुनाऊंगा और आपसे कुछ लूंगा भी, लेकिन उससे पहले एक आखिरी पैगाम और ले लीजिए। हजरात, आज की दुनिया हम इस्लाम को कमजोर समझ बैठे हैं। हमारा दीन कमजोर नहीं है। आप इतिहास उठाकर देखो, हर फील्ड में, हर मैदान में, हर सब्जेक्ट में इस्लाम ही अव्वल है, मुसलमान ही अव्वल है। आज पूरी दुनिया में लोग दावा करते हैं दुनिया को हमने चमकाया। अमेरिका बोलती है दुनिया को हमने चमकाया, बरतानिया बोल रहा है दुनिया को हमने चमकाया, चीन जापान बोल रहा है दुनिया को हमने चमकाया। लेकिन हकीकत यह है दुनिया को ना अमेरिका ने चमकाया, दुनिया को ना अफ्रीका ने चमकाया, दुनिया को ना बरतानिया ने चमकाया, दुनिया को ना चीन जापान ने चमकाया। दुनिया को चमकाया तो हमारा कुरान ने चमकाया। दुनिया दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सबसे अव्वल हम हैं। ये और बात है कि हमारा किरदार खराब है, हमारा कैरेक्टर खराब है। हजरात, दुनिया में रिकॉर्ड आप इस तरह भी देखो कि दुनिया में रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूट जाते हैं। दुनिया वालों का रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड टूट जाता है। आज रिकॉर्ड बना, कल टूट गया, कल रिकॉर्ड बना, परसों टूट गया। एक ने बनाया, दूसरे ने तोड़ दिया। आज का नौजवान क्रिकेट बहुत समझता है। मैं क्रिकेट की मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। अजहरुद्दीन ने रिकॉर्ड बनाया, तेंदुलकर ने तोड़ दिया। कोहली ने रिकॉर्ड बनाया, धोनी ने तोड़ दिया। हिंदुस्तान रिकॉर्ड बनाता है, पाकिस्तान तोड़ देता है। इंग्लैंड रिकॉर्ड बनाता है, ऑस्ट्रेलिया तोड़ देता है। बांग्लादेश रिकॉर्ड बनाता है तो साउथ अफ्रीका तोड़ देता है। दुनिया के तमाम रिकॉर्ड का यही आलम है कि जब रिकॉर्ड बनता है तो रिकॉर्ड टूटता है। लेकिन हमारे दीन को देखो, हमारे इस्लाम का आलम यह है, हमारे बुजुर्गों ने जो रिकॉर्ड बनाया वो न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह कयामत तक टूटेगा। दुनिया के पास हमारे रिकॉर्ड का कोई जवाब नहीं। क्या दुनिया के पास सिद्दीक अकबर की सदाकत का कोई जवाब नहीं? दुनिया के पास उमर की अदालत का कोई जवाब नहीं? दुनिया के पास उस्मान की सखावत का कोई जवाब नहीं? दुनिया के पास अली की शुजाअत का कोई जवाब नहीं? दुनिया के पास हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं? दुनिया के पास अब्दुल कादिर गौसे आजम की करामत का कोई जवाब नहीं? और दुनिया के पास आला हजरत की इल्म व हिकमत का कोई जवाब नहीं। बनता है तो बनता है, न कल टूटा था, न आज टूटा है, और न सुबह क़यामत तक टूटेगा। हज़रात, अब आइए मैं अपने टॉपिक पर, अपने उन्वान पर, अपने मौजू पर आता हूँ। एक हदीस सुनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते। आज आपको बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं मुझे बुखार है। आपको पता है कि आपको बुखार है, तो फिर भी डॉक्टर जो है एक इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा या पता नहीं क्या थर्मामीटर उसे लगाता है, मुंह में डाल दिया, निकालने के बाद कहता हाँ तुम्हें बुखार है। ये कैसी बात है? ये तो मैं पहले ही बोला कि मुझे बुखार है, तूने तो माप के चेक करके बता रहा है कि बुखार है। बुखार है, एक दवाई दिया, बुखार नहीं उतरा, दूसरा दिया, बुखार नहीं उतरा, तीसरा दिया, बुखार नहीं उतरा, फिर जांच कराया, तब जाके बुखार उतरा। आज का डॉक्टर, आज की मेडिकल साइंस बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, सिर्फ तिजारत के लिए है। दवाई पे दवाई दे रहा है, दवाई पे दवाई दे रहा है। लेकिन नबी की बारगाह में देखो, एक सहाबी आए हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से मेरे आधे सर में दर्द है, मैं परेशान हूँ। आका ने फरमाया सब्र कर ले, इसका अज्र मिल जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सब्र कर लेता, लेकिन जब नमाज में जाता हूँ, सजदे की हालत में जाता हूँ, तो दर्द ज्यादा हो जाता है, और दर्द बढ़ने की वजह से मेरा जहन भटक जाता है, नमाज से मेरा जहन हट जाता है। तो आका ने ये नहीं फरमाया जाओ किसी डॉक्टर को दिखा दो। सर में दर्द होता है तो क्या करते हैं? मैंने साइंस का मसला पूछ दिया क्या? मैंने कोई साइंस का मसला पूछ दिया? सर में दर्द होता है तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके दवाई पीते हैं। आका के पास उस दौर में टैबलेट था, बोलो, इंजेक्शन था, कोई सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कुछ था? आका ने, साहबा ने कहा मेरे आधे सर में दर्द है, बहुत परेशानी होती है। तो आका ने किसी डॉक्टर, किसी मरीज, किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल का एड्रेस नहीं दिया, बल्कि आका ने अपने दस्ते मुबारक उसके सर पे फेर दिया। बोलो और जोर से बोलो, आका ने अपने दस्ते मुबारक उसके सर पे फेरा। अब सहाबी का बयान सुनो। सहाबी का बयान है कि आका का हाथ मुबारक मेरे सर पे लगना था, दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी दर्द था ही नहीं बोलेंगे? कभी दर्द
था ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं कि मेरा दर्द गायब हो गया, बल्कि एक कमाल के खूबी मेरे सर में और आ गई। आका ने मेरे सर को हॉस्पिटल बना दिया। मदीने में किसी और के सर में दर्द होता तो अपना सर मेरे सर से लगाता, उसका भी दर्द गायब हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इतना बड़ा पावरफुल मेडिकल कि ये कोई हॉस्पिटल इतना बड़ा कि मरीज को ठीक करे और फिर मरीज को डॉक्टर बना दे। नहीं, आका ने सर का दर्द भी खत्म किया और उसके सर को दूसरों के दर्द से दूर करने का मुआलिज भी बना दिया। कितना पावरफुल है मेरा नबी, कितना बाइख्तियार है मेरा नबी। एक हदीस और सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी हदीस है और बड़ी ही पुरानी हदीस है। आपकी इजाजत हो तो सुना दो? इजाजत है? सुनाइए। इधर ध्यान दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। अभी मैं सिर्फ मेडिकल पे बात कर रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, हजरत अबू हुरैरा बैठे। हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे निसियान की बीमारी है। किस चीज की? भूलने की। मुझे भूलने की बीमारी है। आप मजमे में कोई भी इधर उधर ना देखे, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। मुझे, और मैं इसलिए खूबसूरत नहीं हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, बल्कि इसलिए खूबसूरत हूँ कि मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, और जो नबी की तारीफ करे वो बिलाल भी होगा ना तो वो आसमान का हिलाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ। नजर कहीं नहीं, मेरी तरफ देखिए। आका हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे निसियान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है। मेरी दिल की तमन्ना है आप जो भी बोले मैं उसे सुनूं तो याद रखूं, हमेशा याद रहे, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। या रसूलल्लाह, कुछ इलाज कीजिए। तो आका ने ये नहीं फरमाया कि जा किसी डॉक्टर को दिखा ले, नहीं, बल्कि आका ने फरमाया उपसुद रिदा आका या अबा हुरैरा, हे अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। आज का इंसान होता तो कहता कि सर का दर्द चादर फैलाने से क्या ताल्लुक, चादर फैला के सर का दर्द थोड़ी जाता है। लेकिन वो सहाबी थे, अपनी चादर को फैलाते। आका ने इस तरह लब बनाया, लोग जिसे बोलते हैं, बजाहिर उसमें कुछ नहीं था, यूं ही लब बना के उसकी चादर में डाल दिया और कहा अबू हुरैरा चादर समेट लो और अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा चादर समेटते हैं, सीने से लगाते हैं। दिमाग का सीने से क्या कनेक्शन, लेकिन आका जैसा फरमा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा वैसा कर रहे हैं। सीने से लगाने के बाद अब अबू हुरैरा से रिजल्ट सुनो कि इलाज का क्या रिजल्ट निकला। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका के उस लब को सीने से लगाना था कि मैंने उसके बाद से मैं आज तक कोई लफ्ज भी नहीं भूला, और हद तो यह है कि जिन बातों को मैं पहले भूल गया था वो सारी बातें भी मेरे दिमाग में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है इतना बड़ा। जनाब सामिद से 500 रुपया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिस मकसद से दिया अल्लाह उस मकसद। ये 3 शेख 200 रुपया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिस मकसद से दिया अल्लाह उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। खुदा के घर के लिए दान दे रहे हैं, एक पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। आज आपको लग रहा है कि हम दे रहे हैं, लेकिन जब आप, सुभान अल्लाह, 200 रुपया एक जवान और 200 रुपया दे के गए हैं। हजरात, एक बहुत प्यारी हदीस और बहुत प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? महफूज आलम साहब 200 रुपया से मस्जिद की खिदमत की। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे और इनकी दवाइयों में शिफा दे। आमीन। समीउल हक साहब दुकानी 500 रुपया से मस्जिद की खिदमत की है। अल्लाह ताला इस्लाम को कबूल फरमाए, उनके दुकान में बरकत अता फरमाए और हर बला मुसीबत से बिलखुसूस चोर से महफूज रख ले उसकी दुकान को। अरे आमीन तो बोलो। अच्छा, सुनेंगे हदीस सुना दो? कितने लोग सुनेंगे? अच्छा, जिनका हाथ नहीं उठा वो नहीं सुनेंगे, तो अगर माशाल्लाह सब सुनेंगे, हाथ रखिए। आपको हाथ उठा रहा हूँ, आप इसको गलत मत समझिएगा कि जो मन में आता है सो कराता नहीं। आज की महफिल में बैठे हैं ना तो दीवाना बन के बैठिए। नबी की महफिल में, औलिया की महफिल में बैठिए तो उनका दीवाना बन के बैठिए, इंशाअल्लाह झोली भर के जाएंगे। मैं हदीस सुनाऊंगा लेकिन एक शर्त पर सुनाऊंगा। आज हमें और आपको सिर्फ एक मुख्तसर 2 मिनट में एक वाकया सुन लीजिए। हमें और आपको किसी आजमाइश में, किसी मुब्तला में डाला गया? नहीं डाला गया। अरे बोलिए ना, नहीं समझे? किसी तकलीफ में डाला गया? हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गों को कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हुई आपको मालूम है? एक सहाबी इस्लाम की तबलीग के लिए ईरान पहुंचे, इस्लाम की तबलीग की। वहां के बादशाह ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, उसको दरबार में लाया। 10 लोग थे, 10 लोग थे, सबको पकड़ के बादशाह की बारगाह में लाया गया।
ایک کے سامنے